Har Har Mahadev Shri Shivaya Namastuvyam. So hey guys, here are we with the day 2 vlog day 2 of Shiv Mahapuran vlog. Hereby I would love to share the most beautiful experience of mine in Shiv Mahapuran Katha. So it was like जब भी कथा टीवी पे या यूट्यूब पे देखता था तो एट दैट टाइम गुरुदेव यूजुअली कथा में ऐसे बोलते थे मतलब जब भी कभी आपके नजदीक या आसपास कथा हो रही हो तो आप जरूर जाइए और पंडाल में जरूर जाके आना ऐसे वो बोलते थे बट एट दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक लाइक कि यूट्यूब पे भी टीवी पे भी सेम कथा है और वहाँ जाके भी वुड हियर द सेम कथा होती तो मतलब वहाँ जाके फिर ऐसा अलग क्या था बट आई वॉज रॉन्ग मतलब वहाँ जाके पता चला वहाँ का एटमोसफियर वहाँ का वाइब और मतलब वहाँ जाके ऐसा सच में लगा कि साक्षात महादेव के सामने हम सब बैठे हैं एंड जब वो मंत्र होता था शिवाय नमस्तुभ्यम का तब वो पूरा एटमोसफियर मतलब वर्ड्स में हम नहीं बता सकते कि हाउ वाज दैट फीलिंग सो इट वाज जस्ट ग्रेट जब भी तो डू वॉच द वीडियो टिल एंड वीडियो लास्ट तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, comment, share and subscribe to my channel and please share it again as much as possible. So it's the decoration for second day. We are finally done with it, and as it's not allowed to enter in Gurudev's room, so we have decorated outside his room. So it's the same, and even the entry gate for him means the place from where he go and come, so we have decorated it at our best. So here's we. ॐ लम्बोदराय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ बुद्धिदाताय नमः ॐ सिद्धिदाताय नमः Here's some rush going on to prepare Gurudev's food. So here are we. And as we can see that some things are being prepared and some things are yet to be prepared. So it's a huge task. संसार जसा तवा चुल्ह्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना So here's some special classes going on as there's some enough time to leave for Katha, so everyone is having fun. So here are So as we can see there is a huge rush of all the people to just see or meet or get the blessing or just one click of Gurudev, as Gurudev is leaving for today's katha, and same we are also leaving with him. Hats off to police department, as it being such tough duty, they manage everything such nicely. So every day coming in this way with Gurudev was just like a privilege or a blessing, and I would surely like to
thank to the person who actually took out this shot of coming with Gurudev in this way. It was just a filmy shot. So we have finally reached to the Katha Pandal and tried our best to take this shot of Gurudev while coming in Katha Pandal. दो यहाँ पे जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, लाइक एवरीवन वांट्स टू एक झलक पाना चाहते हैं गुरुदेव की, एक ब्लेसिंग आशीर्वाद लेना चाहते हैं हर कोई गुरुदेव का, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है. बट वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू टेक दिस शॉट. Finally, we are all set to hear today's katha and just get into that flow of Mahadev and just feel him at our best and get blessed by him. And as like I said earlier, like it's completely a different vibe or a moment or a feeling sitting at Katha Pandal. Like we don't even come to understand like how 2-3 hours just went away being sitting here. We get so much mesmerized in that devotional and positive vibe of Mahadev. It's truly like a heaven on earth, and we can just imagine all this thing. Like one should always experience this moment. It's truly a very blissful moment, and I'm lucky that Mahadev have given me this moment. Har Har Mahadev, Shri Sharanamastu. नाक कटी हुई व्यक्ति की सुनार के दुकान पर कोई काम नहीं होता, उसी तरह नासिक में नास्तिक का कोई काम नहीं होता. अगर गोदावरी के तट पर आप रह रहे हैं, नासिक की पवित्र भूमि पर आप रह रहे हैं, इस कपालेश्वर महादेव त्र्यंबकेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर, इस रज पर आप निवास कर रहे हैं, तो आपका भाव परमात्मा के प्रति होना चाहिए और वो भी शुद्ध होना चाहिए. उसमें दिखावे का कोई काम ना हो आपका, कोई भ्रमित होने का कार्य ना हो आपका. सोमनाथ जी में रहने वाले गुजरात के भाई इतने खुश होते हैं कि हम सोमनाथ जी की धरा पर रह रहे हैं. उज्जैनी में रहने वाले महाकालेश्वर के पास रहने वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि हम उज्जैनी में रह रहे हैं. विश्वनाथ में रहने वाले, काशी में रहने वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि हम विश्वनाथ की नगरी में रह रहे हैं. कृष्णेश्वर भीमाशंकर में रहने वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि हम कृष्णेश्वर भीमाशंकर की नगरी में रह रहे हैं. नागेश्वर में रहने वाले नागेश्वर को देखकर प्रसन्न होते हैं. केदारेश्वर में रहने वाले केदारेश्वर को देखकर प्रसन्न होते हैं. रामेश्वर में रहने वाले रामेश्वर को देखकर प्रसन्न होते हैं. मल्लिकार्जुन में रहने वाले मल्लिकार्जुन को देखकर प्रसन्न होते हैं. पर 12 ज्योतिर्लिंग में जो प्रसन्नता है उससे 1000 ज्यादा गुना प्रसन्नता त्र्यंबक की भूमि में होना चाहिए, क्योंकि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों. आपके जीवन में अगर दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो पहले अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, शंकर का मंदिर है, पहले जल वहां चढ़ाओ. में थोड़ा सा भी दुख आए, किसी के पास मत जाओ. सबसे पहले अपने घर में जो कंकर शंकर रखा है, अपने घर में जो रुद्राक्ष रखा है, अपने घर में जो शिवलिंग रखा है, उसकी पूजन करो, उसकी आराधना करो. इसके बाद भी अगर दुख ना कट रहा हो तो प्राथमिक केंद्र पर, मतलब अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, वहां 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो. 3 महीना इंतजार करो कि हम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. फिर जाकर कहीं मौका मिले तो फिर किसी बड़े शिवालय में जाकर भगवान से प्रार्थना. कई लोग कह देते हैं कि हम त्र्यंबकेश्वर को नहीं जानते, कोई कहता है हम शिवलिंग को नहीं जानते, कोई कहता है कि त्र्यंबक है क्या.
कोई कहता है किस स्वरूप में पूजा जाता है, कोई कहे उसको कहो। जो माता का दूध पीकर पैदा होता है, जो माता का दूध पीकर बड़ा होता है, वो कभी महादेव पर उंगली नहीं उठाता। जो बोतल का दूध पीकर पैदा होता है वो महादेव पर उंगली उठाता है। सनातन धर्म पर, इस राष्ट्र पर उंगली उठाने वाला वही व्यक्ति होता है जो थैली का और डब्बे का और बोतल का दूध पीकर बड़ा होता है। जो मां का दूध पिया होता है वो कभी उंगली नहीं उठाता। एक छोटा सा घास का तिनका और रावण उससे डर गया। रावण, छोटा सा घास का तिनका। जब रावण आता था तो सीता उस रावण के सामने वो घास का तिनका हाथ में रखकर बैठ जाती थी और रावण उस घास के तिनके से डरता था। घास के तिनके से रावण डरता था। ऐसा क्या था घास के तिनके में? मां जानकी भूमि से पैदा हुई है और घास भी, जम के बोलो, जम के बोलो जरा, भूमि से पैदा हुआ। तो घास सीता जी का कौन हुआ? जम के बोलो जरा। भाई, एक नारी अपने पति के साथ जाती है तो भी उसको भय लग सकता है, पर एक नारी जब अपने भाई के साथ जाती है तो कोई भय नहीं लगता। नारी को भय पति के साथ भी हो सकता है, उसके मित्रों के साथ भी हो सकता है, देवर जेठ के साथ भी हो सकता है, सास ससुर के साथ भी हो सकता है, पर नारी को, स्त्री को भय अपने भाई के साथ कभी नहीं हो सकता। अपने भाई के साथ नहीं हो सकता। इसलिए सीता जी घास के तिनके को तोड़कर अपने पास में रख लेती थी और सीता जी को यह ज्ञान था कि मैं भूमि से हुई हूं, ये भूमि से घास हुआ है, ये मेरा भाई है और जब तक मेरा भाई मेरे साथ में है तब तक रावण निगाह उठाकर नहीं देख सकता। ये मेरा भाई मेरे साथ में है। रावण की इतनी सामर्थ्यता नहीं कि मुझे निगाह उठाकर देख ले, क्योंकि मेरा भाई है। तुमसे कहे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, कोई कहे ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो विश्वास मत करना कि जिंदगी में दुख नहीं आएगा। पृथ्वी पर आने के बाद तो राम जी के भी जीवन में दुख आया, पृथ्वी पर आने के बाद तो भगवान कृष्ण की जिंदगी में भी दुख आया। पृथ्वी पर आने के बाद जो जन्म लिया उसकी जिंदगी में दुख जरूर आया है। तो ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा, पर इतना जरूर है, राम जी ने शंकर को भजा, दुख कटा। भगवान कृष्ण ने शिव को भजा, दुख कटा। उसी तरह आप और हम भी अगर शंकर को भजेंगे तो दुख जरूर कटेगा, ये निश्चित है, ये पक्का है। दुख कटने का साधन है शिव, दुख कटने का साधन है भगवान शंकर की अविरल भक्ति। ओ भोला सब दुख काटो। जब आप और हम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब स्तुति गाते हैं तो उसमें कहते, हम ये नहीं कहते कि आपका दुख कौन सा है, आप तो जो दुख है हम हमारे बाबा से प्रार्थना करते हैं, भोला सब दुख काटो हारा। इस स्तुति को करने के लिए जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग टीवी पर कथा सुनते हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, जितने पंडाल में कथा सुनते हैं, बाबा से यही मंत्र का जाप करने के लिए और स्तुति करने के लिए आते हैं कि बाबा मेरे जीवन का जो दुख है वो कट। एक बार फिर से बोलो, 3 कौन? मां, महात्मा और परमात्मा। इन 3 को पकड़ कर रखोगे तो जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ते चले जाओ।
जो अपनी माँ का आदर करना छोड़ देता है, अपनी माँ का सम्मान करना छोड़ देता है, अपनी माँ का हाथ पकड़ना छोड़ देता है, अपनी माँ का चरण पकड़ना छोड़ देता है, वो बहुत लंबा नहीं चल पाता। विदेश में कोई मरता है तो कह देते एक्सपायर, डेड बॉडी। पर हमारे यहाँ तो कितना भी पापी से पापी भी मर जाए तो भी उसके नाम के आगे लिखा रहता है स्वर्गवासी। क्यों? क्योंकि वो भारत की भूमि पर जन्मा है, और भारत की भूमि पर जो जन्म लेता है वो नरक कभी नहीं जाता। को उठाकर देखना, हिरण्यकशिपु मरा परम धाम गया, लिखा शास्त्रों में। रावण मरा परम धाम गया, कंस मरा परम धाम गया, तारकासुर मरा परम धाम गया। क्योंकि भगवान का जो हाथ का स्पर्श कर कर जाता है, भगवान का नाम लेकर जाता है, उसका दर्शन कर कर जाता है, भारत की भूमि की रज का स्पर्श कर कर जाता है, वो कभी नरक नहीं जाता, वो वैकुंठ ही जाता है। हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। किसी भी देश को जब नष्ट करना होता है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को नष्ट किया जाता है। विधर्मी जब किसी राष्ट्र को बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं, तो सबसे पहले भीतर घात करते हैं, उसकी संस्कृति को, उसकी सभ्यता को, उसके संस्कारों को नष्ट करते हैं, उसके संस्कारों को नष्ट करते हैं, उसकी संस्कृति को नष्ट करते हैं। और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, शिव महापुराण के माध्यम से आप लोगों ने जो शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा, इस भारत की संस्कृति को फिर आगे बढ़ा दिया। अब बर्बाद नहीं हो सकता। राष्ट्र फिर मजबूत हो गया, सनातन धर्म फिर मजबूत हो गया। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में और विश्व का फिर सनातन धर्म मजबूत हुआ है जब आप लोग भगवान के देवालय शिवालय तक जा रहे हैं। दुनिया में जितनी कथाएं होती हैं उसमें बूढ़ी बूढ़ी माताएं ज्यादा जाती हैं, पर शिव महापुराण की कथा केवल एक ऐसी है जिसमें बूढ़ी माताएं तो कम मिलती हैं, पर युवान माताएं, युवान भाई, युवान बहनें ज्यादा रहते हैं। अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का सुख हो, माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीन को कभी मत छोड़ो। परमात्मा का दरवाजा, दुनिया के लोग कहें, कोई तुमसे कह दे भगवान शंकर को जल चढ़ाने से क्या मिलता है, आप कुछ मत बोलना, यहाँ से हमारे पास से ये पत्र ले जा कर दे देना। इस सारे पत्रों में और कुछ नीचे रखे हैं, जो तुमसे कहें कि शंकर जी को जल चढ़ाने से, बेलपत्र खाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, समी पत्र चढ़ाने से, शंकर भगवान को शहद चढ़ाने से, शंकर भगवान का अनुमोदन करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या मिलता है, उनको ये पत्र ले जाकर देना, जिसमें उनका मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस भी है। वो आपको बताएंगे कि शंकर की भक्ति से मिलता क्या है, शंकर से क्या प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव इसी मृत्यु लोक में कैलाश पर पृथ्वी पर रहता है। इसी कैलाश पर पृथ्वी पर रहता, मृत्यु लोक। चार भुजानाथ की चार भुजा, सत्यनारायण भगवान की चार भुजा, दत्त भगवान की चार भुजा और देवी की 8 भुजा। शंकर भगवान, नारायण भगवान, विष्णु भगवान, इनके 4 हाथ, 4 बेटों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। 4 बेटे कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 बेटों को मेरे भगवान ने
अपने 4 हाथ से पकड़ कर रखा है। पिता अपने बेटे को एक एक हाथ से पकड़ता है, पर माँ अपने बेटे को एक हाथ से नहीं पकड़ती है, माँ अपने बेटे को 2 हाथ से पकड़ती है। इसलिए 4 बेटों को लिए माँ ने 8 हाथ लिए। 4 बेटों को संभालने के लिए माँ भवानी दुर्गा ने अपने 8 हाथ धारण करे। एक बेटे को 2 हाथ से संभालती है, हाथों से उठाती है। माँ अपने बेटों को दोनों हाथ, माँ अपने बेटे को दोनों हाथ से संभालती है, क्योंकि वो माँ है, वो माता। माता अपने पुत्र को दोनों हाथों से संभाल ले। अब तेरे भक्त जनों को माता पीर पड़ी है भारी, और दानव दल पर, आप भी बोलिए, दानव दल पर टूट पड़ो मां करे सिंह सवारी, सो सिंह से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के टुकड़े वारे, ओ मैया हम सब उतारे तेरी। अरे भक्तों के घर भी सांवरे, जाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, शबरी के झूठे भेद भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो। सुपर्णखा कुरूप हो गई, सुंदरता चली गई क्योंकि उसकी नाक चली गई। कुरूप। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, जो नास्तिक होता है, जो भगवान को कभी नहीं भजता, कभी दूसरे के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, सुख को देखकर सुखी नहीं होता, जो कभी परमार्थ के लिए नहीं जीता, वो एक दिन मरने से पहले कुरूप हो ही जाता है। भगवत भक्ति उसके अंतर्गत नहीं है, भजन का सुख उसके अंतर्गत नहीं। चोटा चोरी कर करके कितना सामान ले जाता है, एक मंगलसूत्र ले गया, चेन ले गया, लाख रुपए का सामान ले गया, तो भी चोटा कभी लखपति करोड़पति नहीं बना। आज तक के चोटा की चोटा ही है। और जिनकी चेन मंगलसूत्र चले गया, वो थोड़े दिन रोने के बाद भगवान से कही मेरी चेन मंगलसूत्र चले गया। भगवान ने कहा बहुत दिन से पहन रही थी, चिंता मत कर, हल्का बहुत था इसलिए भारी दिलाना था, चले गए। महादेवा हे देवा, महादेवा हे देवा, महादेवा हे देवा, महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा बाबा जी, बाबा जी। निकली तेरी जटा से गंगा निकली, तेरी जटा से गंगा निकली, तेरी जटा से गंगा निकली। सब भगत लगा रहे होता, बाबा जी मेरी लाज रखना।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। शंकर भगवान के गले में जयमाला पहनाई, जोरदार ताली बजाएं, हर हर। अब भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला। आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। आरती प्रारंभ हो, नामों की सूचना श्री जी को। दिल्ली से नानी सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। So as the second day katha has been ended and we are leaving back to our place with Gurudev. बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। So here's the preparation going on for Gurudev's dinner. Some are working, some are chilling. Now we are going to give Gurudev his food, but except his Shishya, others aren't allowed to enter his room. And here's the time for some high tea for everyone present here. So here are we. So it being Gurudev's dinner time, the plating is being going on, the rush is being going on. It's like a huge responsibility and everyone wants to give their best. And कितीला 5 रुपीज मध्ये देतात दादा 5 रुपीज मध्ये. The rush is still going on, but everyone is working like making it like a teamwork and giving their best, because इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर महादेव ने दी है तो we have to give more than 100%. So here's everyone giving their best.
हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. अरे संसार संसार खोटा कधी म्हणू नये. रावणाच्या कळसाला लोटा कधी म्हणू नये. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. So here's the dinner going on of some of the Shishyas of Gurudev. Here are we going on to distribute some sweets to all the Shishya and all the members present here, may it be a Shishya or people from police department. So here are सार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते